Good evening and welcome. You are watching the News Hour Agenda, India's most loved primetime show at 10. I'm Panuja Joshi. The entire country watched one of the most disgusting videos of recent times. The video of a man so drunk on self-importance and self-arrogated power that he forgot the law. He forgot how does one live in a community, even forgot basic decency. That video was of Shrikant Tyagi, self-styled BJP leader, abusing and pushing a woman in the housing society where he lived only because she was protesting against the illegal construction that he had done around his house. But today, Shrikant Tyagi was made to feel the full impact of the law that he himself had disregarded. Already this man has been booked under the Gangster Act. The complainant has been given to personal security officers. Seeking to surrender, Tyagi has been given the next 48 hours to turn himself in, else he will face harsher punitive action. But what drew maximum cheers today was when the government sent in bulldozers to demolish the illegal construction that for years had been done by Tyagi, that so far had gotten unpunished, that in fact was at the root of the entire fight to begin with. As the workers brought down Tyagi's empire of terror, sweets were distributed. Cheers went up as a jubilant crowd finally felt heard. A sense of catharsis. This, for them, was finally justice not just being done, but seen to be done, and the message drilled in was loud and clear. There will be zero tolerance for gundas and goons, irrespective of who you are, where you come from, and whatever power you think you wield. बहुत खुश हैं। ये काम पहले हो जाना चाहिए, 2 साल पहले हो जाना चाहिए था, बट आज हो रहा है, बहुत अच्छा। आप लोग बहुत दिन से कंप्लेन कर रहे थे इसके बारे में, तो अभी फाइनली एक्शन हो गया। अभी एक्शन हो गया और सबके लिए बहुत अच्छा हुआ है। आप लोग को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी उसका जस्टिस डिलीवर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये हो जाता है और वो इंसान जेल के अंदर आ जाता है तो ये और भी अच्छा होगा। Now we are feeling so safe and we are thinking our government is with us, so now we should not scared from anyone. This is very good because the encroachment is not allowed for anyone, and this is illegal. This was completely illegal, so this should not be done, and I think this is the right what has to be done. पहले से ये होना ही चाहिए था। We are very happy. 3 साल पहले होना तो जो आज हुआ, लेकिन जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। लोगों को ये सबक मिलनी चाहिए कि जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस है, एनक्रोचमेंट्स है, वो खत्म होनी चाहिए। Whatever it is, the final product is that it has been demolished. We are happy with that. योगी जी के इस कार्रवाई से बहुत ज्यादा यहाँ के रेजिडेंट खुश हैं, और जो नोएडा अथॉरिटी है उनके सीईओ हैं, उनकी भी इस कार्रवाई से बहुत खुश हैं। हालांकि उन्हें वो ये एक्शन पहले ले लेना चाहिए था, लेकिन जो हुआ देर आए दुरुस्त आए। ये जो मिठाई आई है इस कार्रवाई की वजह से आई है। आज यहाँ की जनता बहुत खुश है, लेकिन किसी के नुकसान होने पर मिठाई नहीं बांटी जाती, लेकिन जो मिठाई बांटते हैं लोग वो कहीं ना कहीं दुखी होते हैं और उनको ये चीज देखने को मिलती है, तभी वो मिठाई बांटते हैं। But despite all of this, understandably, there is politics even now. From calling the action by the Yogi government too little too late to questioning why was this man protected so far, whether his links to the BJP, what had emboldened him, to even saying that Tyagi is but a tip of the iceberg. And that action you have very well seen. After taking directions from the Honorable Chief Minister, immediately the Commissioner and the District Magistrate reached to the site, and action has been taken against that. He has been booked under Gangster Act. 25,000 rupees prize has been declared on him, and even that the property which has been illegally constructed has been broken down. सबसे पहले तो मैं कहूँगी उसकी गिरफ्तारी ना होने की वजह सबसे बड़ी ये है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा नेता, बड़े से बड़ा नेता, वो पुलिस की चुंगल से निकल जाता है। वो कितनी भी बदतमीजी कर ले महिलाओं से, उनके साथ दुर्व्यवहार कर ले, पर भारतीय जनता पार्टी की पूरी संरक्षण उनको मिलती है। पुलिस उनको पकड़ नहीं पा रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तो ये बात हो गई कि वो सदस्य ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि देखिए पार्टी हमारी बिल्कुल इस संकल्प के साथ कि जो सही है वो होगा, जो गलत होने नहीं देंगे, और जो सही है वही होगा, इस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं। न्याय सबके साथ होगा, कानून व्यवस्था की जो सिचुएशन है उसके साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं मिलेगी, इस संकल्प के साथ हम लोग बढ़े हैं।
तो इसीलिए मैं कहता हूँ, एक तो यह व्यक्ति सदस्य था नहीं, दूसरा कोई हो ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इन जनरल भी मैं इस बात को मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अगर वो गलत किया है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, कोई बचा नहीं सकता उसे। उत्तर प्रदेश में भाजपा का गुंडा सरेआम एक महिला से, बदतमीजी तो बहुत छोटा शब्द है, गुंडागर्दी करता है। जिन शब्दों का प्रयोग किया वो हम सार्वजनिक जीवन में बोल नहीं सकते हैं, वो फरार है। कानून राज की बात उत्तर प्रदेश में ना करे, क्योंकि ये तो हम शुरू से कह रहे थे, यही है उत्तर प्रदेश के कानून की असलियत। मंत्री जी फाइल लेकर गायब हैं और त्यागी जी जो है वो फरार हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस कहीं मिल नहीं रही है। वहां का सांसद ही कह रहा है शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि इस प्रदेश में हमारी सरकार है, तो विपक्ष के लिए मुझे लगता है बहुत कुछ कहने को बचा नहीं है। So is it true? Is this goon Tyagi being shielded by a political godfather? Has the Yogi government given a zero tolerance message by throwing the rule book at Tyagi and company and practically going on an operation all out? Or is this too little too late? But more importantly is the very curious question. What will happen to the people who so far had called the bulldozer, whether in Uttar Pradesh, whether in any part of the country, the weapon for victimizing only the minorities and the poor? You're watching the News Hour at 10, debate number 1 on Times Now, Super Prime Time. All right, joining us on the debate, Alok Awasthi, spokesperson of the BJP in Uttar Pradesh, Anurag Bhadoria, national spokesperson, Samajwadi Party, Pawan Agri, national spokesperson of the Rashtriya Lok Dal, Lokesh Jindal, political analyst. Anurag Bhadoria, सबसे पहले मैं आप ही से शुरू करूंगी। आज 8 अलग-अलग एक्शन लिए हैं योगी सरकार ने इस आदमी के खिलाफ। क्या आप मानेंगे कि अब जस्टिस हुआ है? उत्तर प्रदेश के अंदर में पद्मजा जी गुंडा राज, जंगल राज, माफिया राज और गालीबाज राज चल रहा है। यहाँ पे जो हालत है पुलिस की वो आपने देख ली। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। पुलिस एक बार ये लगातार 5-6 सालों से गुंडागर्दी कर रहा है, लोग परेशान है, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वो तो शुक्र बनाइए मीडिया का, सोशल मीडिया का, जिन्होंने ये वीडियो वायरल कर दिया। वीडियो वायरल नहीं होता तो गुंडागर्दी ऐसे ही चलती रहती। उसके बावजूद भी वीडियो वायरल हुआ, एक्शन हुआ, उसके बाद भी 17-18 इनके लोग दोबारा पहुंच जाते हैं रात को। चलिए, एक्शन मीडिया की वजह से हुआ। चलिए, इसी बहाने आपने मीडिया को कुछ अच्छा तो बोला नहीं तो कई ऐसी पार्टीज जो कह रही है कि सारी मीडिया इंस्टीट्यूशन सब जाके भाजपा के साथ बैठी हुई है। कम से कम आपको किसी को क्रेडिट देना था तो आपने मीडिया को ही दे दिया। चलिए, दैट्स अ गुड स्टार्ट, दैट्स अ गुड स्टार्ट। बट ये बताइए मेरे को, आप कह रहे हैं कि पुलिस कुछ कर नहीं रही है। जो ये 25,000 का जो इनाम है, जो गैंगस्टर एक्ट लगा है, जो 3 FIR हुए हैं, जो 6 पुलिस वाले सस्पेंड हुए हैं, जो 8 टीमें बनी हैं, जो उत्तराखंड को गई हैं, वो कौन कर रहा है? अच्छा, मैं पूरी अनुराग जी, वो मुझे पूरी बात करने दीजिए। तो जिस तरह से पुलिस वहां पे भ्रष्ट है कि वो से 16-17 लोग चले जाते हैं उस लेडी को धमकाने के लिए। इस घटना के बावजूद भी कैसे चले गए? कहाँ है पुलिस कमिश्नर? कहाँ है इनकी पुलिस? फिर बाद में पुलिस नहीं सुनती है तो इनके सांसद आते हैं, फिर क्या कहते हैं पता आपको? मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब सांसद ये कहने लग जाए कि मुझे उन्होंने ऐसा नहीं कहा, वैसे तो मैं वहां मौजूद थी। उन्होंने ये कहा कि मुझे इस बात की शर्मिंदगी हो रही है कि एक महिला को धमकाने के लिए कैसे 10 लोग अंदर घुस गए। उनको आपने एक्स्ट्रापोलेट करके कह दिया मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसा उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने कहा पुलिस किधर है, मुझे इस बात की शर्मिंदगी है कि मेरी बहन को थ्रेटन करने के लिए कोई घुस गया। उन्होंने बोला, अरे मुझे बोलने नहीं देंगे पुलिस ने, उन्होंने बोला कि हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है क्योंकि मेरी पुलिस नाकाम है, नकारा है, सुन नहीं रहे। वो किसको मिला रहे हैं? तो इसीलिए 6 लोग सस्पेंड हुए ना अनुराग जी, 6 लोग सस्पेंड हुए ना, 6 लोग सस्पेंड हुए। कब हुए? पुलिस कमिश्नर क्यों नहीं सस्पेंड हुआ? 24 घंटे के अंदर सस्पेंड हुआ। नहीं, क्यों नहीं सस्पेंड हुआ पुलिस कमिश्नर? मैं पूछना चाहता हूँ। अभी तक पकड़ा नहीं गया अपराधी और पुलिस कमिश्नर भी अपनी जगह बैठा हुआ है। उनको चीफ सेक्रेटरी होम को मिलाना पड़ता है फोन। इसके मतलब पुलिस कमिश्नर करप्ट है। एक सेकंड, तो आप मेरे को ये बताइए, आपकी नाराजगी और आपका ऑब्जेक्शन है क्या? आप कह रहे हैं कि पुलिस कुछ कर नहीं रही है, या पुलिस बहुत कम कर रही है, या पुलिस अभी तक पकड़ क्यों नहीं पाई है? आपका एक पहले नंबर 1 ऑब्जेक्शन बताइए कि बहुत देर कर रही है अरेस्ट करने में।
सुन तो लो, नंबर 1, पुलिस बिना पुलिस के सहमति से, बिना पुलिस के अधिकारियों की सहमति से वो भाग नहीं सकता। वो भाग गया, अभी तक पुलिस के गिरफ्त से बाहर है, सिर्फ खबर आ रही है। एक बात। दूसरी बात, इतने दिन तक वो किसके संरक्षण में, किस भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी का नेता है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ घूमता था, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, सरकार ने उस पर एक्शन इतने दिन तक क्यों नहीं लिया? तीसरी बात, ये लगातार इस तरह इनके नेता कहते हैं कि वो बीजेपी का सदस्य नहीं है। ये बताइए, राज्य सरकार में इनके मंत्री ने कोर्ट से फाइल लेकर, अच्छा, आपकी कंप्लेंट ही कंप्लेंट है। वैसे मैं आपसे इससे पहले कि आलोक अवस्थी जी इसका रिस्पांस दें, आप कह रहे हैं कि 72 घंटे हो गए, अभी तक इसको अरेस्ट कर लेना चाहिए था, करेक्ट अनुराग जी? बिल्कुल। 72 घंटे बहुत देर हो गई। 48 घंटे ज्यादा हो गए। 48 घंटे, 72 घंटे ही होने वाले, राउंड राउंड करके 72 घंटे मान लेते हैं। आपको शायद याद होगा क्योंकि आप तो तब राजनीति में आ गए थे, 2017 का वक्त था, इलेक्शन होने वाले थे। आपके पार्टी के जो गायत्री प्रजापति है ना, उनके ऊपर एक महिला और उसकी अंडर एज बेटी का रेप का मुकदमा चल रहा था। वो पता है कितने दिनों तक भागे फिर रहे थे जब आपकी सरकार थी अनुराग जी? 1 महीना अंदर थे, 1 महीना। 32 दिन के बाद उनको पकड़ा गया। 32 दिन, जिसको 72 घंटे बहुत ज्यादा लगते हैं ना, वो 32 दिन तक गायत्री प्रजापति को ऑन द लूज रखे थे। 32 दिन। जवाब दे रहा। हाँ, जवाब दे रहा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उन्नाव के विधायक को जिसपे चार्ज था और महिला के साथ अन्याय करने का साहस था, लगातार उसको बचाते रहे। इनके चिन्मय स्वामी जो है, गलत था वो भी, पर वो भी 32 दिन से कम में उनको निकाल दिया गया और अरेस्ट तो पहले कर लिया गया था। बट आपने सवाल का जवाब नहीं दिया अनुराग जी। अगर आपको 72 घंटे ज्यादा लग रहे हैं तो आपने 32 दिन तक गायत्री प्रजापति को भागने क्यों दिया? तो क्या हम ये मान लें कि 32 दिन तक गायत्री प्रजापति आपके संरक्षण में भागे हुए थे? वॉज गायत्री प्रजापति on the loose for 32 days because you were protecting him? अनुराग जी, सजा काट रहा है। चलिए मैंने मान लिया कि ये सरकार, मानिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज चल रहा है। ठीक है, जंगल राज है, मान लिया जंगल राज है। अनुराग जी, अब आप सुन नहीं रहे हैं। होल्ड ऑन, 30 seconds please. Your argument is that because Shrikant Tyagi has not been arrested after 72 hours, प्रदेश में जंगल राज है। तो फिर यह भी माना जाए कि जब 32 दिनों तक गायत्री प्रजापति छूटे हुए थे, तब तो मतलब संपूर्ण जंगल राज था, तब तो अदम्य जंगल राज था। मैं सुन लीजिए, कोर्ट से इनका मंत्री सजा की फाइल लेके भाग जाता है। सोचो आप, जंगल राज नहीं तो क्या है? यहाँ पे इनका एक विधायक। चलिए, 72 घंटे से जंगल राज, 32 दिनों से रामराज, कोई बात नहीं। सुन तो लीजिए, जिस तरह से महिलाओं पे सुन तो रही हूँ, पर आप जवाब नहीं दे रहे। मैं सुनने के लिए तो बैठी हूँ, बट आप सुनने नहीं दे रहे क्योंकि आप जवाब नहीं दे रहे। वैसे एक छोटा सा आपको एनेक्डोट और बता दूं अनुराग जी, अब गायत्री प्रजापति की बात निकली है तो थोड़ी दूर तक तो जाएगी। सो लिसन टू मी फॉर अनदर 30 seconds एंड आई रियली मस्ट ओपन दिस अप। सो लिसन टू मी फॉर अनदर 30 seconds। चलिए, 32 दिन तक आपने गायत्री प्रजापति को ढूंढ नहीं पाए, मामला यही नहीं रुका। दर्शक ये जान के और भी खुश होंगे कि महिला हित का इतना आपको ख्याल था कि उनके अरेस्ट होने के बाद 27 जून 2017 दिस मैन हु वाज अरेस्टेड अंडर पॉक्सो, यानी कि बच्ची से रेप का जिसके ऊपर इल्जाम था, उसको मिलने के लिए आपके पार्टी के नेता मुलायम सिंह जी जेल गए। नेताजी जेल गए गायत्री प्रजापति से मिलने, और उससे मिलने के बाद ये बोला नेताजी ने, दिस इज व्हाट ही सेड, Gayatri Prajapati is being treated like a terrorist in jail. An innocent person like him has been put on jail because of bogus complaints by women. And you know what he said about the woman? उस महिला के बारे में नेताजी ने बोला, how can a woman get raped when she didn't even go to Prajapati's house? तो जब महिला के हितों की और महिला सुरक्षा की बात होती है ना, थोड़ा सा लुक बैक। सुनिए, मेरी बात सुनिए। खुद नेताजी गए मुलायम सिंह यादव जेल में पॉक्सो के आरोपी से मिलने। 5 घटना कोर्ट में अंडर ट्रायल चल रही है घटना, और आप भी जानते हो कोर्ट में किस तरह के बयान। अभी तो महिलाओं की बात हो रही है ना अनुराग जी, महिलाओं की बात हो रही है, महिलाओं पे रहते हैं। उन्नाव में अब आप किधर चले गए? बताते घूम रहे थे, कौन था स्वामी, कौन थे? चलिए, ओके, चलिए, कोई बात नहीं। आई थिंक इट इज क्वाइट क्लियर व्हेन यू टॉक अबाउट जंगल राज। एंड लेट मी से एट द आउटसेट, आर देयर पीपल हु आर हार्बरिंग क्रिमिनल्स इन पॉलिटिक्स?
Absolutely yes. But can any political party sit there and take a moral high ground? Absolutely no. और मैं तो अभी उन नेताओं की बात भी नहीं कर रही हूं जिनको पब्लिक में इतना बढ़ा चढ़ा करके पैरागॉन ऑफ वर्च्यू दिखाया जाता है और उनकी पर्सनल बिहेवियर कैसी होती है महिलाओं से। बट एनीवे, आलोक अवस्थी जी ये बताइए, 3 साल लग गए टू क्रैक डाउन ऑन श्रीकांत त्यागी, क्यों? क्या आपके पेट्रोनेज के, आपके झंडे के और आपके जो आपका पूरा एक पार्टी का जो संरक्षण था उसके बिना इस आदमी का इस तरीके का दबंगई चलती? कौन है ये आदमी? कौन है? हजारों ऐसे घूमते हैं उत्तर प्रदेश में, पर इसकी इतनी क्यों चलती थी? पद्मजा जी, इस व्यक्ति के पास पार्टी का ना कोई पद था, ना ये पार्टी का सदस्य था। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ही ये रहता था और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ही जा चुका है। लेकिन और ये कोई बड़ा बदमाश भी नहीं था, छुटभैया है। तो इस छुटभैये के मामले में मेरा स्पष्ट रूप से कहना है, इस देश प्रदेश के अंदर कानून का राज है। जैसे ही ये घटना प्रकाश में आई, उसमें तुरंत ही हमने कार्रवाई करी है। इसकी इलीगल कंस्ट्रक्शन को हमने तोड़ा है, इसके साथ के लोगों को उठा के बंद किया है, इस आदमी के ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है, इसकी जितनी अवैध संपत्ति है उसकी सूची बनाई गई है। क्योंकि ये फरार है तो 25,000 रुपए का इसके ऊपर इनाम रखा गया है और पुलिस की 8 टीमें दौड़ रही है। वो बहुत अच्छी बात है, ये मानते हैं कि आज आपने एक्शन लिया। मैं ये कह रही हूँ 3 साल से क्या चल रहा था आपको मैं बताती हूँ। अगर ये छुटभैया नेता है तो 8 अक्टूबर 2018 को गाजियाबाद पुलिस ने इसको 1 गनर दिया। उसके बाद प्रदेश शासन के आदेश पे इनको 2 और सुरक्षा कर्मी दी गए। भाई हजारों छुटभैये घूमते हैं, हमें तो नहीं मिलता गनर, इनको कैसे 3-3 गनर मिले हुए थे, वो भी गाजियाबाद पुलिस के? क्यों? और उस वक्त तो मौर्य जी आपके साथ भी नहीं थे, जितना मुझे याद है। गनर किसी को गनर नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य मंत्री थे। गनर अगर किसी को मिलता है तो वो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की रिकमेंडेशन पे मिलता है कि इस व्यक्ति को जान पे खतरा है। अरे पर ये तो छुटभैया है, इसको क्या जान का खतरा हो गया? ये ना आपका नेता है ना ये कहीं का नेता है। आप कह रहे हैं कि हमने इसको कोई सुरक्षा नहीं दी थी। ये बाय द वे ऑन रिकॉर्ड बोला है आपके नेताओं ने कि इनके पास जो गनर है हमारा कुछ लेना देना नहीं है। अब पता चल रहा है गाजियाबाद पुलिस ने मुहैया कराई थी। आपको लगता है कि इसकी दबंगई अपने से चलती? जब आदमी गनर लेके घूमता है तब गुंडागर्दी होती है और इसीलिए लोगों को डरा रहा था। आप क्या कर रहे थे 3 साल तक? इसकी जान को खतरा है, ये जिनको धमका रहा है उनकी जान को खतरा नहीं है। नहीं है, ये प्राइवेट सिक्योरिटी, यह प्राइवेट सिक्योरिटी को लेकर चलता है और हम किसी भी महिला की अस्मिता की हम रक्षा करने के लिए प्रण किया है। योगी आदित्यनाथ जी को दोबारा टर्म दिया है जनता ने तो इस भरोसे से दिया है कि उन्होंने 5 साल तक इन गुंडों को, मवालियों को, दंगाइयों को, आतंकवादियों को जो है किनारे रखा है। और यह कसम खाई है योगी आदित्यनाथ जी ने कि एक भी बदमाश को छोड़ेंगे नहीं, एक भी दंगाई को दंगा करने नहीं देंगे और आतंकवादी एक भी घटना नहीं होने देंगे। आप समाजवादी पार्टी की आप बात कर रही थी, मैं इसमें और जोड़ना चाहता हूं गायत्री प्रजापति के बारे में। गायत्री प्रजापति को राज्य मंत्री बनाया गया था। जब करप्शन के चार्ज लगे उसका प्रमोशन करके उसको स्वतंत्र प्रभार दे दिया गया। जब और करप्शन के चार्ज लगे तो उसको पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद फिर मुलायम सिंह के कहने मंत्री बना दिया और कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। उस मंत्री ने, बलात्कारी मंत्री ने, जिसके न्याय के लिए एक बालिका और उसकी मां भटक रही थी, योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद हमने अरेस्टिंग कराई है और उसको आजीवन कारावास की सजा कराई है। अखिलेश यादव तो उसको चुनाव प्रचार में जा रहे थे, छोड़ दिया जाए। एक महिला कौन अधिकारी मिला हुआ है जो गनर दे रहा था, कौन नेता मिला हुआ है जो तय दे रहा था, कौन है? 5 मंत्री और मैं कहना चाहता हूँ जनता के सामने आना चाहिए। अधिकारी मिले हुए हैं, इससे नेता मिले हुए हैं, बीजेपी का नेता है और बीजेपी के नेता को बचाने की कोशिश मत कीजिएगा। पर एक सेकंड, बार-बार जो कहा जाता है, लेट मी गेट इट पवन आगरी जी, यू नो, बार-बार पवन आगरी जी ये बोला जाता है कि बीजेपी के नेता को बचाने की कोशिश हो रही है, दिस इज विदाउट अ डाउट। 2018 में इनको गनर मिला, हाँ मिला, 2020 में विड्रॉ कर लिया गया। आज जब इस आदमी ने बदतमीजी की, और इसमें छोटा सा मैं आपको पीछे का वाकया बताती हूँ। 3 साल पहले इस आदमी की कंप्लेंट हुई थी, उस वक्त भी पुलिस आई थी, इसका इलीगल एनक्रोचमेंट उस वक्त भी हटाया गया था, फिर 3 साल में इसने फिर से बना दिया। अब इसने बदतमीजी की, अब इसको जैसे कि हिंदी में कहते हैं, इसको दौड़ा दौड़ा के पकड़ा जा रहा है। इसके ऊपर इसकी दुकान हो, इसका घर हो, इसका गांव हो, इसका दूसरा घर हो, हर जगह छापे डाले जा रहे हैं। तो कौन बचाने की कोशिश कर रहा है? क्या बचाना इसको कहते हैं या बचाना इसको कहते हैं जो मैं 2013
क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ आपका गठबंधन है, तो मैं आपको बताती हूँ कि 2013 में उत्तर प्रदेश सरकार ने had moved court to drop a case of rape and dacoity against a समाजवादी पार्टी लीडर। एटा में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने एक मूव किया एप्लीकेशन saying that this man who is a leader of theirs from कासगंज, उनके खिलाफ डेकोइटी और रेप का केस था, उसको विड्रॉ कर लिया जाए। बचाना तो इसको कहते हैं ना, गैंगस्टर एक्ट का लगाना बचाना तो नहीं कहते। जी देखिए, जिसको भी बचाया गया ये तो आप ये बिल्कुल गलत कह रही हैं, क्योंकि वो सजा काट रहे हैं गायत्री प्रजापति, पहली बात। अब काट रहे हैं ना सर, अब काट रहे हैं। नहीं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मेरी एक बात सुनिए। पर जब सरकार थी तब तो भगा रखा था ना उनको। देखिए, इस समय फिर तो ये दुर्भाग्य हो गया कि चुनाव हो गए, सरकार बदल गई। देखिए पद्मजा जी, क्या पता अभी भी भाग रहे सम्मानित मंत्री होते। पद्मजा जी देखिए, पद्मजा जी सत्ता मद में चाहे श्रीकांत त्यागी हो या हमारे आगरा के टिंकू भार्गव हो, जो कि क्या नाम है अनुसूचित मोर्चा के जिलाध्यक्ष, जिनको बाकायदा पद मिला और उन्होंने अपने मित्र का गला काट कर, अभी आपने 2 दिन पहले देखा होगा, वो उन्होंने गला काट कर और बाकायदा मतलब इस तरह का कार्य किया, वो हत्या के आरोपी हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो लग रहा है जो अपराधियों को ये बात कर रहे हैं वो भी जेल में है। और बाय द वे, क्योंकि आपने एक अलग सा एग्जाम्पल लाके खड़ा किया है, मैं आपको बता दूं, जो आप एग्जाम्पल बोल रहे हैं ना, उनका पर्सनल डिस्प्यूट था सर, मतलब डोमेस्टिक डिस्प्यूट था। अब आप उस बात को ला रहे हैं, सारे अपराधों को। और शायद यही कारण है कि आज उसकी इतनी हिम्मत पड़ गई है श्रीकांत त्यागी की कि उसको पूरे प्रदेश की सरकार यदि पकड़ नहीं पा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि उस पर किन लोगों का हाथ है। सर, तो मुझे कुछ कहने की आवश्यकता तो नहीं घर क्यों टूटता? एक वली उल्ला करके आतंकवादी था। देखिए, वली उल्ला करके आतंकवादी था पद्मजा जी, वली उल्ला करके एक आतंकवादी था, बनारस में बम विस्फोट किए थे। 18 लोग मारे गए संकट मोचन मंदिर के अंदर। उसका मुकदमा जो है अखिलेश सरकार ने वापस लेने का प्रयास किया था। हाईकोर्ट ने, जज ने कहा कि उसको प्रथम श्री दे दीजिए, आपका बस चले तो। उसको फांसी सजा दिलाने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया है। ये आतंकवादियों को समर्थक है, ये आतंकवादियों को मदद करते हैं, मुख्यमंत्री का काम करते हैं। एक और मुख्यमंत्री जी से आग्रह लगने से उसकी मौत हो गई। 40 अरे आप समझिए, मैं तो मुख्यमंत्री जी से खुद आग्रह कर रहा हूं, आदित्यनाथ योगी जी से, कि यदि वो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो इन अपराधियों को सजा दें और बाकायदा। लेकिन ये कहना कि हमारा उस पार्टी से कोई मतलब नहीं था, या ये बिल्कुल गलत बात है। नहीं तो उसको सिक्योरिटी क्यों दी जाती? आप ये बताइए। अरे सिक्योरिटी तो अब हटा ली गई सर, आप 3 साल पहले दी गई सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं लोकेश जिंदल, बट आप भूल जा रहे हैं कि आप बार बार जिस आदमी को कह रहे हैं कि भाई इसके ऊपर सत्ताधारियों का हाथ है, सरकार का हाथ है, योगी आदित्यनाथ का खुद का हाथ है, ये कैसा हाथ है कि वही हाथ हथौड़ा चला रहा है आपके घर के ऊपर। एक तरफ मैं आपको बता रही हूं, how people are being given actual security where cases are being withdrawn, and on the other hand, this man is literally being hunted down. क्या होता अगर ये मामला पब्लिक लाइफ में उजागर ही नहीं होता? क्या होता अगर सोशल मीडिया में ये मामला नहीं डिस्कस होता? क्या होता अगर आप ये मामला नहीं डिस्कस करते? तो ये मामला रफा दफा हो जाता। ऐसे श्रीकांत त्यागी घूमते रहते, उस महिला के साथ अत्याचार होता, आम नागरिक के साथ अत्याचार होता, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। क्योंकि रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी कि अब जो पॉलिटिशियंस हैं 363 सिटिंग एमपी एंड एमएलएस, दे आर क्रिमिनल्स, हैव क्रिमिनल रिकॉर्ड्स। और सबसे ज्यादा टॉप लिस्ट बीजेपी ने की। 83 टोटल बीजेपी के ऐसे एमपीज और एमएलएस हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स। बात यह है, अगर बीजेपी वाकई में सीरियस है करप्शन इस तरह की वारदातों को लेके, तो उसे उन सभी एमपीज और एमएलएस के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सेक्शन 8 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत कोई ना कोई लीगल प्रावधान लेके आना चाहिए, ताकि ऐसे श्रीकांत त्यागियों के लिए सबक बने। इनकी हिम्मत बढ़ती जाती है। आपने जैसा कहा 2018-2020 गाजियाबाद पुलिस ने इन्हें संरक्षण दिया, एक गनमैन दिया, 2 गनमैन दिए, इन्हीं से इनकी हिम्मत बढ़ती है। ऐसा चाहे पॉलिटिशियन किसी भी पार्टी का हो। तो अगर आप कह रहे हैं कि अगर किसी को रिप्रिमांड ना किया जाए तो उनकी हिम्मत बढ़ जाती है? बिल्कुल।
शायद वैसे ही जैसे कि अशोक गहलोत जी ने एक बार असेंबली में बोला था कि राजस्थान में रेप के आंकड़े इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि महिलाएं झूठी रिपोर्ट लिखा रही है रेप की, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो परसों उन्होंने ये भी बोल दिया कि अगर बच्चियों की हत्या हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि रेप लॉज बहुत टफ है। शायद उनको रिप्रिमांड किया जाता तो ये नहीं बोलते। गहलोत साहब उस समय एज अ लेजिस्लेटर के तहत उन्होंने बात की है, उनका काम है कानून बनाना। उनको कैसे पता कि महिलाएं झूठ बोल रही हैं जब वो रेप की रिपोर्ट लिखा रही हैं? देखिए उनके पास में मुख्यमंत्री होते हुए वो रेप कंप्लेनेंट को झूठा बोल दें तो वो लेजिस्लेटर का हैट पहने हुए हैं। इट इज नॉट द इंटेंसिटी ऑफ द punishment, it is the certainty of the law that prevents or that acts as deterrent. खनन माफिया ने So whenever we are talking चौथी about बार an जो है administration, हमारे सांसद वहां पर है, महिला सांसद है रंजीता कोहली, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया है। चौथी बार एक महिला सांसद के ऊपर हमला किया है खनन माफिया में राजस्थान के अंदर। आलोक अवस्थी, क्या ये करने जा रहे हैं? सवाल पूछ रहे हैं आलोक अवस्थी। घटनाएं पूछिए। हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ, चौथी बार हमारे सांसद रीता कोहली महिला सांसद हैं, खनन माफिया के द्वारा हमला किया गया, जानलेवा हमला किया गया है। अशोक गहलोत सरकार क्या कर रही है? महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार की जो कथाएं आती हैं वो समाजवादी आपकी राजस्थान सरकार में आती है। अशोक गहलोत जी क्या कर रहे हैं? और वहां पर जब मॉब लिंचिंग होती है तो एक मुसलमान को तो जो है 50 लाख का मुआवजा दिया जाता है और राहुल गांधी जो है उसमें जाकर के ट्वीट करते हैं और एक इंक्वायरी कमीशन बैठता है। वही एक खेताराम करके जो है हिंदू मारा जाता है, मॉब लिंचिंग उसकी भी होती है। उसकी गलती ये होती है कि उसने एक मुसलमान लड़की से जो है शादी कर ली थी, उसको मारा जाता है। 2 लाख मुआवजा भी आपकी सरकार नहीं देती है। ये किस तरह का भेदभाव वहां पर है, ऐसा बता दीजिए। Okay, the facts of the case are right there in front of you. One thing is amply clear. Everyone has a very dodgy record when it comes to standing up for women in principle. If it comes to putting their political expediency or choosing between political expediency and the rights of women, the choice is very clear for most netas. But to give credit where it's due, today the Yogi government has thrown the rule book at this man who certainly deserves it. He deserves to be behind bars. And what is the ultimate irony and poetic justice? When he was abusing that lady, he called her do kaudi ki. And today, thanks to that lady standing up to this man, he's lost his house, he will be behind bars, and he's being hunted down like the goon that he is. Let's hope he's behind bars ASAP. Thanks very much, gentlemen, for joining me.